मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपा तमं वन्दे शक्तिग्रन्थग्रन्थरन्मम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। I seek all of your blessings to fix able to see something which is meaningful for you. Up to one, what sloka last time we did? 14, 13, 13, 31, 18 to 31 means 14 number sloka. Okay. So again, quickly I will recapitulate. So there Kunti is praying when Krishna is leaving for Dwaraka. Kunti is praying very nice prayers, set of prayers, which is there in Bhagavatam, Canto 1, 8th chapter, and from sloka number 18 onwards. 18 to up to some 24, 25 slokas. So 18 plus 24 maybe 40 to 43 total number. Serial number will be 40 to 43. So she is playing Namaste Purushastuatam Ishara Prakrite Param Alaksham Sarvabhutanam Antarbahir Avasthitam. Namaste Purushastuatam. She is praying O Adi Purush Bhagavan. So Namaste Purushastuatam Prakrite Ishara Prakrite Param. You are Ishvara and you are Prakriti Param. You are controller of the Prakriti and beyond the Prakriti. Param Alaksham Sarva Bhutanam Antarbahir Avasthitam. Alaksham, you are not visible to Sarva Bhutanam. To all living entities, you are not visible. Although you are present Antar and Bahir. Antar Bahir Avasthitam. You are present inside and outside, but you are not visible to anybody. Why you are not visible? Is next second sloka. Maya Javanika Channam Aggo Adakshajam Abhayam Nalakshashay Mudodrisha Natu Nattu Dharajata. Maya Javani Kachanam. So Maya, curtain of Maya. Javani Kachanam. Achanam is covered. Javanika means curtain. So our eyes are covered by a curtain of Maya. Maya Javani Kachanam Aggo Adakshajam Abhayam. So that's why we are Aggo, we are fools. Adakshajam is Bhagavan. Bhagavan is Adakshajam is who cannot be known by your material senses. So Bhagavan cannot be known by your material senses. That's why he is known as Adakshajam. Aggo Adakshajam Abhayam. Nalakshashe Mudodrisha. Nalakshashe means he is not visible. To Mudo means foolish persons like us. Nato Natto Dharajata. She is like an actor. Nato means an actor. Natto Dhara. Like when his actor is taking the role of any particular personality or costume he is wearing. So he is taking the role of that. Nato Natto Dharajata. So when he is wearing that different costume, we are not able to identify him generally who is the actual person. So similarly, when Lord is coming to us in different forms, we are not able to identify him because we are covered by curtain of Maya. माया का पर्दा हमको कवर कर रहा है. Then third श्लोका क्या है? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिया. Telling, but you can be seen by Paramahamsas, whoever great personalities, Paramahamsas, they can see you. Tatha Paramahamsanam Muninam Amalatmana. Munis, the great Munis can see you. Amalatmana, Amal, free from any dirtiness, Atmana, and they can also see you. Amalatmana, Bhakti Yoga Vidhanartham Katham Paschema Istriya. Bhakti Yoga. And whoever is pursuing Bhakti Yoga very strongly, they can also see you. But Katham Paschema Istriya. Those days women are considered less intelligent. Because they cannot do some the meditation etc. like the men etc. So they were considered less intelligent. So she is telling Katham Paschema Histriya. So how I can see you? I am a Stri, I am a woman, I am less intelligent, so how I can see you? So you are visible only to the great Munis and Rishis, but how I can see you? But what I can do is to offer prayers. So she is praying fourth sloka. क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. Krishna Vasudeva. So you are Krishna, you are Vasudeva. Vasudeva means son of Vasudeva. Vasudeva Devaki, Vasudeva Devaki Nandanacha, and son of Devaki Nanda Gopakumara, and you are also the son of Nanda Maharaj and son of all the Gopas, son and friend of all the Gopas. Nanda Gopakumara Govindaya Namo Nama. Govinda means you give pleasure to the cows and the senses. That's why his name is Govinda. Namo Namo. I offer my obeisance to you. Next. Namo Pankaja Nabhaya, Namo Pankaja Maline, Namo Pankaja Nitraya, Namaste Pankajangraya,
Namo Pankaja, she is not finding any good example. So by material example only, she is telling Namo Pankaja Nabhaya. So your navel is like the lotus flower. Lotus flower is very beautiful. So like the lotus flower, beautiful lotus flower. Namo Pankaja Maline. You are wearing garland of the lotus flower. Namo Pankaja Netraya. Your eyes are like lotus flowers. And Namaste Pankajangraya. Your feet are also like the lotus flower. Next. यथा सिक्स्थ श्लोक यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचर्पिता विमोचितं च शात्मजो विभु तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गना. So यथा ऋषिकेश केन खलेन देवकी. Rishikesha means controller of the senses. Krishna's one name is Rishikesha, so he is addressing him as Rishikesha. Yatha Rishikesha khalena devaki. So just like Rishikesha has saved Devaki from Kanksha, clutches of Kanksha. Devaki Kankshana Ruddha Ticharam Shuchirpita Vimochitam means freed, Mukt kiya. Vimochitam cha Shahat Majabuyu Taiva Nathena Muhur Vipadgana. And again such dangers you have saved us. Bisham Magne Purushada Darshana Ashat Shavai Vanavasha Krichata Mride Aneko Maharatastato Drauni Astratas Chashmi Hare Brikrakshita. It's like you have saved us from the Bisham. Bhima was given poison. भीम को विष दिया गया था दुर्योधन द्वारा, उससे कृष्ण ने बचाया कुछ अरेंजमेंट से. भीषम महाअग्नि जतुगृह में उनको जला के राख करने का प्लान किया था दुर्योधन वगैरह, बट उससे भगवान कुछ प्लान करके बचा लिया. भीषम महाअग्नि पुरुषाद दर्शनम असत सभा means where Draupadi was tried to disrobe, so that is called asat sabha and Banavasa. And in the Banavasa, so when they were in Banavasa, 12 years Banavasa, there also Krishna saved him in so many ways. Krichata means they performed so many austerities there. Mride aneko maharathostato. Mride like that again and again. Aneko maharathostato. In the battle of Kurukshetra, they have saved them from so many great warriors. Maharathostato Drauni Astrutas Chashmi Hare Brish. And even at the last, from the Drauni Astra, Drauni means Ashwatthama, son of Dronacharya. Drauni Astra, Ashwatthama released Brahmastra for the last descendant of the, at that time the last descendant was Parikshit Maharaj, who was there in the womb of Uttara. Uttara was son of Abhimanyu, and Uttara's wife was pregnant, and she was having the son in his son who is later named as Parikshit Maharaj, and he was there in the womb of Uttara, and Ashwatthama out of great enviousness released the Brahmastra. He wanted to destroy the dynasty completely. So he released the Brahmastra, and Uttara immediately fell at the lotus feet of Krishna and asked for protection. Then Krishna immediately gave the protection. So he entered the womb of Uttara and gave protection, and with the help of Sudarshan Chakra neutralized the Brahmastra and saved Parikshit Maharaj. So here that's why Kunti is giving her gratitude, expressing her gratitude. First of all, he prayed, then he told her incapability, then prayed to Krishna, offered him glorification, then now offering him gratitude. So how Krishna has saved them from so many different situations. So she is telling, from the Mahabharata Yuddha, so many great warriors you have saved us, and finally you saved us from the Brahmastra released by Drauni means Ashwatthama. So she is expressing her gratitude. Then after expressing gratitude, she is telling the most beautiful sloka, Vipada Shantu Tashat Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsada Punar Bhava Darshanam. So Vipada Shantu Tashat. Let these dangers come again and again. Shashwata means again and again, eternally. Let these dangers come again and again. Why? Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsat Apunor Bhava Darshanam. Because if they come, then I will be remembering you very strongly. Then you will be coming as you have kept on coming till now. And by that, by seeing you, what will happen? Apunar Bhava Darshanam. So again, we need not see this material world again and again. By seeing you again, we need not see this material world again and again. Because this material world is always full of miseries. Dukkha ushadam tatha vidukkanam dukkha ushalam, something called.
Dukkhaushalam ashashvatam. Ashashvata. It is this material world is ashashvatam, is not temporary, is temporary, not it permanent, and ashashvatam and dukkhaushalam, and full of miseries. So she is saying we need not see the material world again and again. If you give us miseries, then we'll remember you. Then by remembering you, you will come give you darshan. By seeing you darshan again and again, we need not see this material world again and again. So that's why she is praying for more and more miseries. Then Janmaisharya Sruta Sribhir Eda Mana Madapuman Naivarhati Avidhatum Baitam Akinchana Gocharan. Then she is telling, who cannot pray to you feelingly, who is having Janmai Aishwarya Sruta Sribhir, Janma, who is having a good birth, Aishwarya, opulent birth, Sruta means good education, and Sribhir, Sri means good beauty. So one who is having these things, good birth, good aristocratic birth, good knowledge, education, and good beauty, one who is possessing these things, so he or she will not feelingly approach the Lord. Janmaishwarya Sruto Sribhir Eda Mana Madhapuman. So because he becomes intoxicated with pride with all these things, उसके बाद गर्व होता है, ये सब चीज़ जिसको रहता है तो उसको बहुत गर्व रहता है, तो इसी का शेल्टर लेता है, तो भगवान के पास फीलिंगली आ नहीं पाता है. जन्मैश्वर्य श्रुतो श्रीभीर एदा मना मदपुमान नैबर्हति अभिधातुम भाई तम अकिंचन गोचरम. But you are visible to the akinchana, one who is not having anything. So one who is not having anything, so most likely he will look towards the Lord. So Lord says in Bhagavad Gita, four types of people surrender unto me. Chaturbija bhajante mam, jana shukritina arjuna, artho artharthi jigashu bharatarsava. Jigashu gyanicha bharatarsava. So four types of people surrender to me. One who is artho, one who is in distressed condition, one who is in mental problem, mental torture, distress condition. So there is a possibility that he will surrender to me. Artho artharthi, one who is willing to have more and more wealth and knows that there is some supreme, so he will be praying to the Lord to have wealth. Artho artharthi jiggasu, one who is inquisitive, to know what is what, inquisitive. And Gyani, one who is Gyani, one who is having the knowledge. So this four type of people will surrender to me. So Kunti Devi is praying here. So one who is having all these opulences, so he or she will not pray to Lord so feelingly. So now she is telling, who can pray, who is akinchana, who is not having these things, or at least not having the possessiveness, either not having these things at all, or at least not having the possessiveness, means he is knowing that I am the caretaker only. These things are given to me for a short duration of time, 5 years, 10 years, 50 years, maximum 100 years. Then this will be taken away from me. So as a caretaker, he takes care. He knows these things belongs to God only, not to me. So he is also akinchana. Like I told the example of Sudama. So when finally he became, initially he was very poor, not able to get his meals also. And finally by Krishna's blessings he became very rich. But that time also he was not having the possessiveness of anything. So he used his everything for the service of the Lord. So he is also called akinchana. Namo akinchana vittaya nibrita guna vrittaya atma ramaya shantaya kaivalopataye namo. So he is praying Namo akinchana vittaya. So you are the property of the akinchana. So one who is akinchan, you are the property of him or her. Namo akinchana vittaya nibrita guna vrittaya. And you are beyond the three gunas. This material world is controlled by three gunas, Sattva guna, Rajaguna and Tamaguna. And you are beyond the gunas and also the controller of the gunas. Krishna tells in Bhagavad Gita 7.14 thola kholiye 7.14 Bhagavad Gita 7:14 sloka. Daivi esha gunamayi mamo maya durattaya Mameva ja prapadyante maya metam tarantite. Daivi esha gunamayi. So this material world is also Daivi and it is gunamayi, made of the gunas. Mamo maya durattaya, and my maya is durattaya, means unsurmountable. Usko koi atikram nahi kar sakte mera maya ko. Mameva ja prapadyante maya metam tarantite. But who can surrender, who can overcome? ठीक है, वो हो गया, बोल गया, याद आ गया, बोल दे. 7.14 में नहीं है ना, देख लीजिए भागवत गीता. हाँ ठीक है.
मामे वो जो प्रपद्यते माया में तम तरंती थे। सो जो मुझसे सरेंडर करता है, प्रपद्यंते मीन सरेंडर, माम एवा, माम मीन्स मी एवा, प्रपद्यंते सरेंडर्स, माया में तम तरंती थे, ये माया से वो अतिक्रम कर सकता है, ये माया के ऊपर जा सकता है वो जो मुझसे सरेंडर करता है, शरणागति लेता है, जो मेरा शरणागति लेता है, भगवान बोल रहे हैं वो इस माया को अतिक्रम करता है। तो ये जगत त्रिगुण से बना हुआ है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तय। सो भगवान ये तीनों गुण के ऊपर है और तीनों गुण का स्वामी है। तो नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमो। आत्मा रामा, भगवान इज फुल्ली सेल्फ सेटिस्फाइड, he doesn't need anything. So he is also telling in Bhagavad Gita 3.17, third chapter 17 sloka. नैवतश्चो कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन। No, this is 17 हाँ 17 वाला बोलिए। तस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव आत्मसंतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान बोल रहे हैं जस्तु आत्मरतिर एवा, जो आत्मा में स्थित है, जो समझते हैं, जो ये हमारा जो भी रिलेटिव्स है, जो भी है, सब बॉडी रिलेशन है, ये कोई भी आत्मा से रिलेशन नहीं है किसी का, आत्मा सिर्फ भगवान से जुड़ा है। सो जो ये सब जानता है और जो आत्मा में स्थित है, जस्तु आत्मरतिरेवा आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मा में सेटिस्फाइड है, आत्मनि एव च संतुष्ट, उसी में संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ ड्यूटी नहीं है, उसके लिए कुछ मेटेरियल ड्यूटी नहीं है। सो भगवान भी ऐसा है, भगवान ऑलरेडी आत्मा में, वो तो परमात्मा है, तो स्थित है, उनके लिए तो कुछ ड्यूटी है ही नहीं। तो वो अभी क्या बोल रहा था, आत्मा रामाय संत कैवल्य, आत्मा राम, भगवान आत्मा रामा और उनके लिए कुछ ड्यूटी है नहीं। संत है कैवल्य पतये नमो, वो शांत है भगवान और कैवल्य पतये नमो, जो भी मोनिस्ट है, जो भी मेडिटेट करता है, सबका वो स्वामी है, कैवल्य पति है, सबका भगवान स्वामी है, कैवल्य पतये नमो। सो कुंती देवी उनको प्रेयर कर रहे हैं, ये भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अन्यतम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानम मन्वितो गुली। मन्यतम कालमीशानम, सो आई कंसिडर यू काला मीन्स टाइम, इटर्नल टाइम। So Lord is the master of the eternal time. So he is telling Mannatam Kalam Ishanam. So you are the controller of the eternal time. Mannetam Kalam Ishanam Anadi Nidhanam Vibhu. Anadi, you don't have a beginning, Nidhanam, and you don't have an end also. Anadi Nidhanam Vibhum Samam Charantam Sarvitra Bhutanam Yan Mithokali. Samam Charantam Sarvitra, you are equal to everybody. Samam Charantam Sarvitra Bhutanam Yan Mithokali. We only think that is different, but Bhagavan is equal to everybody. Like the sun is giving his rays equally to everybody. It is up to us to go out of the building, take the sun rays, benefit of the sun rays or not. It is up to you. So how much we are covering us, it is up to us. But the sun rays are there always. And similarly, the Lord's mercy is there for everybody. It is up to us to take how much we want to take. Next. अभेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम। ये श्लोका नंबर क्या है, 31 है क्या, 29, ठीक है, और 2 होगा उसके बाद। नभेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तबे हमानश्च निरम विडम्बना नयश्च नयश्च कश्चित् दैतास्ति कर्हिचित् देशश्च जस्मिन् विषमो मतिर्निवान्। सो नभेद कश्चित्, ना मीन्स नॉट, वेदा मीन्स नो, टू बी नोन, जानने वाला, वेदा जानना मतलब वेदा, ना वेदा कश्चित, तुमको जान नहीं सकते, कश्चित मतलब कभी भी जान नहीं सकते। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, भगवान तुम जब अपना पास्ट टाइम्स करते हो, तुम जब अपना लीला करते हो, चिकीर्षितम मतलब लीला है, तो भगवान कश्चित उसको हम समझ में नहीं पाते। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षिता तबे हमानश्च निरम विडम्बना। स्पेशली तुम्हारा जो नर लीला होता है उसको हम लोग समझ नहीं पाते, उसको हम लोग लगता है हमारे तरह ही है, भगवान हमारे तरह ही है। निरम, निरम मतलब नर लीला, नर मतलब मनुष्य का लीला जो करता है वो विडम्बना। विडम्बना मतलब बिविल्डरिंग, बिविल्डरिंग का हिंदी क्या बोलेंगे, आश्चर्य, आश्चर्य नहीं, और थोड़ा अलग है, नहीं और थोड़ा बेटर, विडम्बितम मतलब वही होता है, ठीक है।
तो ये आश्चर्यजनक है भगवान का ये लीला। नहीं, मोहित कर देता, बिल्डर मतलब जो मोहित कर देता। और कुछ अच्छा वर्ड होगा, और कुछ अच्छा वर्ड हो, हाँ, भ्रम पैदा करता है, बट एक वर्ड होगा, एग्जैक्टली एक वर्ड है, हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, छोड़िए, सही नहीं है, समझ में आ गया, ओके। भ्रमित करता है जो, उसके लिए एक वर्ड होगा हिंदी में, अच्छा, हाँ, मोहित, सम्मोहित, हाँ, सम्मोहित करता है, एक वर्ड है वो, ऐसा होगा, और भी वर्ड हो रहा है, बट ये सम्मोहित, सम्मोहित करता है, मतलब आपको मोह में डालता है, हाँ, उस टाइप का, यस, करेक्ट, ठीक है। तो भावा तुम्हारा जो मनुष्य का लीला है वो बहुत विडम्बना, वो हमको विडम्बना, हमको विमोहित करता है। नेक्स्ट 30 श्लोक, हाँ, जन्म कर्म्य च विषात्मा अजस्यात्मन आत्मनम धीर्यम निरीशेषु निशीषु तदतन्व विरंबना। जन्म कर्म च विषात्मा, तुम्हारा जन्म कर्म ये सब बहुत प्यूरिफाइंग है, तुम विश्व का आत्मा हो, सारे विश्व का तुम आत्मा हो। विश्वात्मा, जन्म कर्म च विषात्मा, क्या है उसके बाद? अजस अकर्तुर आत्मा, अजस, तुम अनबॉर्न हो, तुम जन्म नहीं लेते हो कभी कभी भी, तुम जो ये तुम्हारा एक लीला है, एक्चुअली तुम जन्म नहीं लेते हो। तो अजस अकर्तुर, अकर्तुर में तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है, तो अजस अकर्तुर आत्मना, तुम आत्मा में स्थित हो, तुम सारे विश्व का आत्मा हो। तिरियन ऋषिषु यादव तदतंत विडम्बना, तिरियन, तिरियन मतलब पानी, तुम पानी में कभी आए हो मत्स्य अवतार में। तिरियन ऋषिषु, ऋषिषु मतलब नरो और ऋषि, नरो रूप में आए हो कभी, तुम ऋषि रूप में आए हो, नर नारायण ऋषि जैसा है। तिरियन ऋषिषु, लास्ट लाइन, तदतंत विडम्बना, वो सब बहुत विडम्बना है, बहुत बिल्डरिंग है। नेक्स्ट 31 श्लोक, आज से ये, आज 31 श्लोक पढ़ेंगे विस्तारित। गोपी यदा दे तई कृतागशेतमतवत् याते दशाश्रु कलिलंजन संभ्रमक्षम वक्रम निनिया भय भावना स्थितश्च क्षमं विमो याति भीरपि जद विभेति। सो गोपी, ये दामोदर लीला के बारे में बोल रहे हैं। गोपी अदा दे, गोपी मतलब इधर यशोदा मैया को बोल रहे हैं। गोपी अदा दे तई कृतागश, गोपी यशोदा मैया जब हाथ में दंड लिया था, दंड लेके कृष्णा को पनिश करने के लिए आ रहा है, तब कृष्णा ऐसे भाग रहा है जैसे वो बहुत भयभीत है। तो ये बोल रहे हैं, यशोदा मैया बोल रहे हैं, ये बहुत विडम्बना है, ये कैसे हो सकता है? जिससे भय, जिस पर्सोनिफाइड, फियर पर्सोनिफाइड जिसको भय करेंगे, वही भगवान यशोदा मैया को भय कर रहा है। तो ये बहुत बिल्डरिंग है। ये यशोदा मैया का फर्स्ट टाइम तो पता होगा सबको, दामोदर लीला जो हम लोग नमामि शरणं जो गाना गाया, नमामि शरणं सच्चिदानंदरूपम नमो ईश्वर, ये सत्यव्रत मुनि ने ये द्वापर युग में जब कृष्ण आया था उसके बहुत पहले सत्य युग में लिखा था ये। तो उसने प्रेडिक्शन करके, वो ये जो मुनि ऋषि होते थे उस टाइम, वो लोग सब तत्वदर्शी होते थे और त्रिकालदर्शी होते थे, मतलब भूत भविष्य सब जानते थे। तो वो कलियुग में, सॉरी द्वापर युग में जो कृष्णा लीला करेंगे, वो लीला उस टाइम वो उसके लिए बारे में वो लिख लिया सत्यव्रत मुनि ने। नमामि ईश्वरम, तो बोल रहे नमो ईश्वरम, ईश्वर सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद विग्रह, तुम्हारा जो विग्रह है, तुम्हारा जो शरीर है सच्चिद आनंद है विग्रह। नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, लसत कुंडलम, तुम्हारा कान में ईयररिंग शार्क जैसा, शार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? शार्क, जो तिमी माछ जैसा एक मत्स्य होता है ना, हांगर, वो बंगाली में हैंगर बोलते हैं, हिंदी में वो एक मत्स्य होता है ना, वो खाता है, दांत भयानक होता है, तब बहुत कुछ मछली इंसान को भी खा लेगा। एक तो तिमी होता है, बड़ा सा व्हेल एक होता है, दूसरा शार्क होता है, उसका हिंदी क्या है? शार्क ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जैसा, शार्क जैसा देखने में तुम्हारा ये है, तो जो भगवान जो पहना था कान में, वो शार्क जैसा देखने में था। तो इसलिए बोल रहे हैं नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, तुम गोकुल में घूम रहे हो, ऐसे कान में ऐसे पहन के गोकुल में घूम रहे हो। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, उसको ओपन करिए थोड़ा। यशोदा भियालु खलब्धा ममायं परम निष्ठमत्तन तल दुप गोपा। यशोदा भियालु, तुम यशोदा का भाई में भाग रहे हो। यशोदा भियालु खलब्धा ममानंग, तो उदुखल से जंप किया, उदुखल के ऊपर कृष्ण चढ़ के वो माखन तोड़ रहा था, बंदर को खिला रहा था।
तो माता यशोदा उधर आके बहुत गुस्सा हुआ कि उसे एक तो तोड़ रहा है, दूसरा बंदरों को खिला रहा है, इसलिए उन्होंने हाथ में छड़ी लिया और तब कृष्णा उधर से उदुखल से जंप करके, जंप का हिंदी क्या है एग्जैक्टली? कूद गया। तो उधर से कूद गया और भाग रहा है और उनका माया माता उसके पीछे भाग रहा है। इधर हम लोग ये श्लोक में ये बोल रहे हैं, गोपी यदा दे तई कृतगशी तब कृतगशी मतलब तुम दुष्टमी, तुम बदमाशी किया था, गोपी यदा दे, इसलिए गोपी जो जशोदा मैया है उसने अपने हाथ में छड़ी लिया। गोपी यदा दे तई कृतगशी तम तब याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रक, इसलिए तुम्हारा आंसू में आंख में आंसू आ रहा है। वो जो दामाष्टकम है उसमें भी एक लाइन है कि आंसू आ रहा है। शातंक नेत्रम उसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है गोपी यादा तय कृतकशी दमत्रम याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रकम, तो तुम्हारा आंसू बहुत भयभीत है, कलिलांजन संभ्रमक्ष, और तुम्हारा आंख में काजल था वो काजल धुल रहा है। भक्तरम नीनिया भाई भावना स्थित, भक्तरम तुम अपना सर को नीचे किया, एज इफ तुमने बहुत बड़ा गलती किया इसलिए अपना सर को नीचे किया। भक्तरम निनिया मतलब नीचे किया, भक्तरम मतलब फेस, निनिया मतलब नीचे करना। भक्तरम निनिया नेक्स्ट लाइन क्या है, वर्ड क्या है? भक्तरम निनिया भाई भावना स्थित, एंड भाई में फुल फियर में, स्थित मीन्स अवस्थित, सिचुएटेड, भाई में अवस्थित है। शमम भीमोहिति फिर भी जद भीवती, वो हमको बहुत विमोहित कर रहा है, बिल्डर कर रहा है। शमम भीमोहिति फिर भी जद भीवती, सो जो फियर पर्सोनिफाइड है वो भी भगवान से डरेंगे, बट भगवान इधर तो अपना माता से डर रहा है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है। एक थोड़ा जोक बोलता हूँ, एक हम लोग बोलते हैं फियर का साइकिल, ये मटेरियल एग्जाम्पल है, जस्ट स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, मटेरियल एग्जाम्पल जस्ट याद आ गया बोल रहा हूँ। तो फियर का साइकिल है, होता है ना, जैसे बोलते हैं कॉकरोच, हाँ कॉकरोच रैट को डरता है, सो रैट कैट से डरता है, कैट कुत्ते से डरता है, कुत्ते अपना मास्टर से डरता है, मास्टर अपना मिस्ट्रेस से डरता है, मिस्ट्रेस कॉकरोच से डरता है। तो ये फियर का साइकिल है, ये मटेरियल एग्जाम्पल है, जस्ट जोकिंगली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है, जस्ट लाइट करने के लिए। तो इधर भी ये बोल रहे हैं, तो हम तो जो भगवान तुमसे फियर पर्सोनिफाइड, तुम डरेंगे, पर तुम अपना माता से डरो, ये बहुत हमारे लिए बिविल्डरिंग है, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक और ये है। अभी इसको थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ता है, ये श्लोक से आज करना था ना, ओके। 14 श्लोक बसा था, स्टार्ट करो, देरी 1.8.30 वाला 31 कंप्लीट हो गया था, ये श्लोक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ये और 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा काउथ क्विज रहेगा। थोड़ा ये 26 श्लोकाइस है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद काउथ क्विज रखेंगे 3 या 4 वीक के बाद। उसके बाद फिर भगवत गीता वापस आएंगे हम लोग। भगवत गीता चैप्टर 1 किया था, 2 किया था, 3rd का आधा से ज़्यादा हो गया था, बीच में हम लोग इधर आ गया था, तो फिर से वही करेंगे। बट इसको थोड़ा ओनली 26 श्लोकास है, एटलीस्ट थोड़ा मीनिंग्स पढ़िए, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद भी जब भी हम कुछ डेंजर में होते थे, अपना तबीयत बहुत ख़राब होता था, बहुत हाई फीवर, हार्ट अटैक हुआ, बहुत है, तो हमेशा किसी को बोलते थे कि मेरे पास कुंती प्रेयर लेके आके पढ़ो, तो कभी भी वो कुंती प्रेयर लेके आके लोग पढ़ते थे और प्रभुपाद जी सुनते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको लाइफ को थोड़ा ये करने कैसे देखते हैं हम लोग। जब भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, हम थोड़ा बिविल्डर्ड हो जाते हैं, एकदम पूरा जैसे होपलेस हो जाता है। बट इधर कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, प्रॉब्लम को अच्छा भगवान का मर्जी जैसे देखना है, ये सब कुंती देवी ने हमको सिखाया। 31 हो गया था बोल रहे हैं, परपट हो गया था, तो अभी 32 से होगा, 31 से होगा, ओके। तो इसका ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, माय डियर, जा रहा है क्या, जा छोड़ के आएगा, हाँ ठीक है। माय डियर कृष्णा, जशोदा took up a rope to bind you when you committed an offense। तो बोल रहे हैं जशोदा एक रस्सी लिया था, जब तुम एक बदमाशी किया था तब जशोदा मैया ने रस्सी लिया था,
and your perturbed eyes, तुम्हारा आंख भयभीत था बहुत, eyes overflooded with tears, और वो आंख से आंसू आ रहा था, which washed the mascara from your eyes, तो तुम्हारा आंख से काजल धुल रहा था, and you are afraid, though fear personified is afraid of you, this sight is bewildering to me, ये हमारे लिए बहुत bewildering है. Here is another, जा रहे क्या? ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके. वो मोबाइल ऑन है ना? हाँ ठीक है चलेगा, बट उसका वो नहीं दिख रहा है, बट इधर है, उसको ऑन करिए. क्या हो गया उसको, ब्लैक क्यों है? नहीं नहीं लेके 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 नो प्रॉब्लम. वो मोबाइल अगर ठीक है तो चलेगा. वो क्या होगा, उसका स्क्रीन चला गया. देखो स्क्रीन क्या हो गया, देखिए, प्रेस करिए वो ब्लैक वाला. ठीक है, हरे कृष्ण. पैकेट यू वांट टू टेक फॉर योर हस्बैंड? माता जी पासवर्ड ये किसका मोबाइल है पता नहीं. पैकेट यू वांट टू टेक फॉर योर हस्बैंड, यू कैन टेक. श्रीवास, श्रीवास एट अ पार्सल दिए, एट अ पार्सल. माता जी के एट अ पार्सल दिए, माता जी के एट अ पार्सल दिए. Here is another explanation of the online, पता नहीं ऑनलाइन साउंड और वीडियो आ रहा है क्या? ऑनलाइन साउंड और वीडियो आ रहा था क्या? हेलो, ऑनलाइन साउंड और वीडियो आ रहा था क्या? ठीक हो गया. अभी क्लियर है, पहले क्लियर नहीं था क्या? अच्छा अच्छा, अभी एक बार और देखिए, एक बार और देखिए. अभी इसको अनम्यूट किया, अभी बोलिए, अभी क्लियर है? अभी भी क्लियर है? अभी आ रहा. ओके ठीक है, ओके अभी सही है. अभी सही है ना? अच्छा ठीक है, उसमें कुछ हो गया था, बंद हो गया था. ओके. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. So the Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotees. So भगवान को बहुत आनंद आता है जब उनका भक्त उनको डांटता है, बहुत प्रिय भक्त उनको डांटता है, वो भगवान को वेद स्तुति से अच्छा लगता है. वेद से अगर हम भगवान को स्तुति करेंगे, उससे भगवान का भक्त अगर भगवान को डांटता है, वो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है. ये बहुत स्पेशल चीज़ है, स्पेशल कि भगवान को अगर कोई प्रेयर करता है, उससे भगवान को, अगर भगवान का भक्त प्यार से उसको डांटता है तो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है. Here is a specific example of the Lord being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. So जो भी भगवान का प्रिय भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो प्रेम से भगवान का सेवा करता है. And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. So ऐसा जब सर्विस करता है, वो जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान कभी कभी भूल जाता है कि भगवान भगवान है, तो भगवान को कभी कभी डांट देता है और वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relatively when the service is rendered spontaneously out of pure affection without anything of reverential admiration. जब भक्त के पास ये रेवरेंशियल मतलब मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रेवरेंस का एग्जैक्टली हिंदी क्या बोलेंगे? या रेवरेंस मतलब नमस्कार करते हैं हम लोग. हाँ, हम जब सम्मान पूर्वक जब भगवान को ये करते हैं, उससे अच्छा भगवान को जो कोई अगर प्यार से डांटता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान को. क्योंकि ये शुद्ध भक्त जो है वो अपना वो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतःस्फूर्त वे में उसका प्रेम है, तो उस प्रेम से वो कभी कभी भूल जाता है भगवान का पोजीशन. ये कट हो गया. हो गया तो वो भगवान को अच्छा लगता है. Devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only, and while discharging
While discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishably. उनको भगवान को ज़्यादा पसंद है when the service is rendered spontaneously. जब वो स्वतःस्फूर्त में वे में spontaneously का एग्जैक्ट हिंदी क्या है? हाँ? हाँ? स्वतः करेक्ट, स्वतःस्फूर्त, स्वतः अगर वो प्रेम से करता है तो विदाउट एनीथिंग ऑफ रेवरेंशियल एटीट्यूड, अगर उनको पास सम्मान वाला एटीट्यूड नहीं है तो भगवान को ज़्यादा अच्छा लगता है. जनरली द लॉर्ड इज वर्शिप्ड बाय द डिवोटीज इन ए रेवरेंशियल एटीट्यूड. जनरली हम लोग करते हैं, हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए, हम लोग को इमीडिएट नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, हम लोग को रेवरेंशियल एटीट्यूड में ही जाना चाहिए. हम लोग को भगवान के पास सम्मान से ही जानना चाहिए और उनके पास प्रेयर ही करना चाहिए. बट जो शुद्ध भक्त होता है उनका ऐसा नहीं है और वो भगवान को ज़्यादा पसंद है. हमको वो इमिटेट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट इमिटेट दैट. बट जनरली द लॉर्ड इज वर्शिप्ड बाय द डिवोटीज इन अ रेवरेंशियल एटीट्यूड, बट द लॉर्ड इज मेटिकुलसली प्लीज्ड व्हेन द डिवोटी आउट ऑफ प्योर अफेक्शन एंड लव कंसिडर्स द लॉर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन हिमसेल्फ. जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को लेस इंपॉर्टेंट, मतलब कम इंपॉर्टेंट का हिंदी क्या है? कम महत्वपूर्ण सोचता है, वो ज़्यादा भगवान को प्यारा है. द लॉर्ड्स पास्टाइम्स इन द ओरिजिनल अबाउट ऑफ गोलोक वृंदावन आर एक्सचेंज इन दैट स्पिरिट. जो गोलोक वृंदावन में है भगवान का जो लीला होता है वो इसी स्पिरिट में होता है, तो सब लोग भगवान को छोटा ही देखते हैं. द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा कंसिडर हिम वन ऑफ देम. सो जो भगवान का बंद सखा लोग हैं वो उनके जैसे ही एक सोचता है, तो दे आर कंसिडर हिम एंड वन ऑफ देम. They do not consider him to be of reverential importance. The parents of the Lord who are all pure devotees. जो भगवान का माता पिता है वो लोग तो जरूर शुद्ध भक्त है. Consider him as child only. वो लोग भगवान को एक बच्चा ही सोचता है, तो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है कि भगवान को कुछ मतलब कृष्णा के बारे में सोचता है, अपना बेटा ही सोचता है, तो उसका कुछ हो गया क्या हो गया क्या, एक बच्चा ही सोचता है. और तो कृष्णा ने बहुत कुछ लीला किया, गोवर्धन उनके सामने ही गोवर्धन उठाया, उनके सामने ही कालिया दहन किया, बट तुरंत वो भूल जाता है. जोग माया तुरंत वो भुला देता है और तुरंत वो सोचता है कि फिर वो मेरा बेटा ही है. तो कभी भी दूसरा कुछ डेंजर आता है, कुछ आता है, इमीडिएटली वो भगवान विष्णु के पास प्रेयर करता है कि मेरा कृष्णा को बचाओ बचाओ, और अपना बच्चा ही सोचता है, वो भूल जाता है. द लॉर्ड एक्सेप्ट्स द चैस्टाइजमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स मोर चेयरफुली दैन द प्रेयर्स ऑफ द वैदिक हिम्स. तो उनका जो माता पिता उनको डांटते हैं वो भगवान को ज़्यादा पसंद है. वैदिक मंत्र से आगे कोई भगवान को पूजा करता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान को ये. सिमिलरली ही एक्सेप्ट्स द रिप्रोचेस ऑफ हिज फियांसीज मोर पैलेटेबली दैन द वैदिक हिम्स. सिमिलरली लॉर्ड का जो गोपी लोग हैं वो लोग भी जो भगवान को डांटते हैं वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है. व्हेन लॉर्ड कृष्णा वॉज प्रेजेंट इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड टू मैनिफेस्ट हिज इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रिल्म ऑफ गोलोक वृंदावना as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Jashoda. जब भगवान कृष्णा इस जगत में आए थे, गोलोक वृंदावन का जो लीला है उसका एक एडवर्टाइजमेंट इधर करने के लिए जब आए थे, तब माता यशोदा को माता जैसा ग्रहण किया और उनका दासत्व स्वीकार किया. The Lord in his naturally childish playful activities used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. तो जब माखन का वो पॉट तोड़ते थे उसके बाद उनके दोस्तों को सब बिलाते थे और बंदरों को भी बिलाते थे. Mother Yashoda saw this and out of her pure love she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. So Mother Yashoda जब ये देखा उनको भी लगा कि बेटा को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा नाटक करना चाहिए. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up as is generally done in the ordinary household. So वो थ्रेट कर रहा है कि मैं तुमको बांध दूंगा. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks. तो उनका आँख से आंसू आने लगा, उनका मुंह को पूरा धुल रहा है. वॉशिंग ऑफ द ब्लैक ऑइंटमेंट स्पेयर्ड अबाउट हिज ब्यूटीफुल आईज. उनका आँख में जो काजल है वो धुल रहा है. दिस पिक्चर ऑफ द लॉर्ड इज एडोर्ड बाई कुंती देवी बिकॉज ही इज कॉन्शियस ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पोजिशन.
सो इसको कुंती देवी इसको प्रेयर में बोल रहे हैं। ही इज फियर्ड ऑफन बाई फियर पर्सोनिफाइड, येट ही इज अफ्रेड ऑफ हिज मदर who wanted to punish him just as an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Jashoda was not. तो जशोदा का वो याद नहीं था कि भगवान भगवान है, बट कुंती को याद है कि भगवान भगवान है। कुंती का ऑल्दो कृष्णा इज कुंतीज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब हिंदी, नेफ्यू का हिंदी भतीजा, भतीजा, हाँ। सो कुंती का भतीजा है कृष्णा, बट फिर भी उनको पता है कि कृष्णा भगवान है, परंतु जशोदा को वो पता नहीं है। ठीक है, और प्रसाद लिया, प्रसाद लिया, पैकेट लेना है क्या? पैकेट ले लीजिए, ठीक है, ओके। Children position of the Lord, she would certainly have hesitated to. So जशोदा माया को यह याद नहीं है, ये पता नहीं है कि भगवान है, उनका बेटा भगवान है, वो पता नहीं था। बट कुंती देवी को पता है उनका भतीजा भगवान है, बट जशोदा माया को पता नहीं है। And the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. अगर माता यशोदा को याद रहता है कि भगवान है, वो कर नहीं पाते, ये लीला हो नहीं पाता था, इसलिए उसको भुला दिया गया उनको। But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way. So इसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं है, पूरा नेचुरल स्पॉन्टेनियस वे में ये लव है, प्रेम है। And Kunti remembering the scene was bewildered and she could do nothing but praise the transcendental filial love. So कुंती और कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ उसको प्रेज का हिंदी प्रशंसा कर रहा है। Indirectly Mother Jashoda is praised for her unique position of love. So indirectly हम लोग माता यशोदा को भी प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा करना है उनका जो प्रेम है उसके लिए। तो जो प्रेम का वशीभूत भगवान हुआ, उस प्रेम का she could control even the all powerful Lord as her beloved child. तो उनने भगवान को भी कंट्रोल कर रहे हैं। आज इतना ही रहने देते हैं या और करना है, रहने देते हैं ना, ठीक। तो 31 तक हुआ, नेक्स्ट 32। 31 मतलब टोटल कितना हो गया? 18 से 31 मीन्स 13 + 1 14, टोटल 14 नंबर्स हो गया, ठीक है। और 10 है, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन इनक्वायरी या कुछ ऐड करना चाहता है तो बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाला भी कुछ है तो ऐड कर सकते हैं, 2-3 मिनट 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपुर्भक्षः, शीलटङ्कनखलये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो जामि ततो नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल मरे नख अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंग, तव कर कमल
केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे धृत जय जगदीश हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय लक्ष्मी जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Okay, we are ending the program online also. Thank you for joining. ठीक है. हरे कृष्ण.